Sorry, I got late. मेरी आंख लग गई जरा. I had put up an alarm, but शायद miss कर गया मैं. I'm so sorry. Okay, I'm just getting the notes. I'm getting the file attached. Okay, just 2 minutes. Just 1 minute. Huh? Okay, can you see the file? Can you see the file? Okay. So yesterday we had a problem with the audio and video. So आज भी कुछ अगर ऐसा होता है तो let me know. वैसे तो आई हैव इन्फॉर्म्ड द एडमिनिस्ट्रेशन, तो आज शायद अपना इस तरह का टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए. Okay, so we were doing evolution of man. Okay, so ये this chart is about the evolution of man. As actually ये chapter 12वीं का है, so it's going to be there next year. But I was just introducing you to some interesting topics. Okay, so all these are ancestors of man, हमारे पुरखे. And this one is supposed to be the first primate. और इसके पहले जो थे वो मैमल्स थे, मतलब मैमल्स में से फिर ये प्राइमेट बना. प्राइमेट मींस एनिमल्स ऑफ द फर्स्ट रैंक. सो वी आर ऑल एनिमल्स ऑफ द फर्स्ट रैंक. ओके, तो हम कल बात कर रहे थे कि ये कौन से मैमल्स में से आया होगा, वेदर आवर एंसेस्टर दे वर वेजिटेरियंस और नॉन वेजिटेरियंस. ओके, फिर हमने एक डिस्कशन किया अबाउट द हिपोपोटामस एंड द व्हेल. Okay, so like that, I was asking you whether our ancestors were vegetarian or non-vegetarian. ठीक है. So if you all know, we have an appendix. हमारे intestine में appendix होता है. You know, an appendix is a very small organ which is not of much use. Okay, तो ऐसे organs जो शायद एक जमाने में हमारे ancestors में यूज में थे, लेकिन अब हमारे ज्यादा काम के नहीं है. Such organs are not called useless organs, but they are called vestigial organs. They're called vestigial organs, which means they are not of use. ठीक है, but they were present in our ancestors. Yeah, they are useful in ruminants, not in ruminants, but they are useful, we can say they are useful in herbivorous animals. Herbivorous animals मतलब प्योर वेजिटेरियन एनिमल्स. ठीक है, तो हर्बीवोरस एनिमल्स में अपेंडिक्स क्या काम करता है? व्हाट डज इट डू? व्हाई अपेंडिक्स इज लार्ज इन हर्बीवोरस एनिमल्स और इंसानों में एंड कार्निवोरस एनिमल्स में इट इज स्मॉल. डाइजेस्ट सेल्यूलोज. और ये सेल्यूलोज कहां से आता है? प्लांट्स. ओके, सो प्लांट सेल वॉल्स आर मेड अप ऑफ सेल्यूलोज. इफ वी ईट एनिमल्स या एनिमल प्रोडक्ट्स तो उसमें सेल्यूलोज नहीं होता है. एंड सेल्यूलोज इज अ पॉलीमर ऑफ which basic compound? Cellulose is a polymer of which basic compound? सेल्यूलोज किससे बनता है? क्लोरोफिल. नो. cellulose is made from what compound? A very common but important basic compound.
क्लोरोप्लास्ट्स में बनता है, बट वो भी सेल्यूलोज नहीं बनता है क्लोरोप्लास्ट में। क्लोरोप्लास्ट में क्या बनता है जो विच इज नेसेसरी फॉर ऑल ऑर्गेनिजम्स? क्लोरोप्लास्ट में ऐसा क्या बनता है विच इज वेरी नेसेसरी फॉर ऑल ऑर्गेनिजम्स? विच कंपाउंड? Which compound? Yes. So it is glucose. So glucose is made in photosynthesis from carbon dioxide and water in the presence of sunlight. Okay, that is photosynthesis. Then glucose can be converted to different products. For example, it is converted to starch as a storage compound for storage of energy. But it can also be converted to cellulose. And cellulose is a structural polymer. उससे प्लांट सेल वॉल को स्ट्रक्चर मिलता है, और स्टार्च इज अ स्टोरेज पॉलीमर. Okay, yeah, so we eat vegetables in vegetable, no, cellulose is present in all cells or in cell walls of all vegetarian food, that is all plant cells, चाहे वो vegetables हो, fruits हो, roots हो, stem हो, all will have cellulose. Okay, and हम उसको digest नहीं कर पाते. We have to chew our food very well, और हमको अच्छी तरह chew करने पर we will break the cell walls, and if we succeed in breaking the cell walls, तब हमको प्लांट सेल के अंदर का न्यूट्रिशन मिलता है. ओके, बट इमेजिन कुछ लोगों के पास, जैसे बूढ़े लोगों के पास दांत ही नहीं होते, सो दे आर नॉट एबल टू चू सेलुलोज. तो फिर वेजिटेरियन होकर भी उनको न्यूट्रिशन मिलता है, वो कैसे मिलता है? व्हाट आई सेड, सेल्यूलोज को चबाना पड़ता है, तब जाके सेल टूटता है एट द माइक्रोस्कोपिक लेवल, एंड जब सेल ओपन होगा टूटने के बाद, तब उसके अंदर का न्यूट्रिशन हमको मिलेगा. नाउ आई एम आस्किंग यू, फिर बूढ़े लोग जिनके पास दांत ही नहीं होते और फिर भी वो वेजिटेरियन है, तो उनको न्यूट्रिशन कैसे मिलता है? If we cannot digest cellulose and if we don't have teeth, how will we get nutrition from plants? समझे? जूस, लेकिन दांत नहीं है तो जूस कैसे बनाएगा? बनाओगे मिक्सर में? मिक्सर ही नहीं है, गांव वाले हैं, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है या मिक्सर नहीं है, तो फिर हाउ विल यू गेट cooking the vegetables? Very good. So when you heat plant cells, तब उसका सेल वॉल डिसइंटीग्रेट हो जाता है, सेल्यूलोज ब्रेक्स, तो तब जाके उसका अंदर का न्यूट्रिशन मिलता है. And that is why either you have to cook vegetarian food or you have to chew it very well, तब जाके उसका फायदा होता है अपने को. Okay, and we don't have the cellulose digesting enzyme, that is cellulase. Okay, cellulase होता है सिर्फ उन एनिमल्स में जिसमें अपेंडिक्स होता है, या इट इज ऑल्सो फाउंड इन द स्टमक्स ऑफ सम एनिमल्स, दैट इज जो रूमिनेटिंग एनिमल्स होते हैं. तो ये सेल्यूलोज डाइजेस्टिंग एंजाइम जो सेल्यूलेज होता है, सेल्यूलेज, क्या वो एनिमल्स खुद बनाते हैं? हर्बीवोरस एनिमल्स हैव गॉट सेल्यूलेज, बट क्या वो खुद उसको मैन्युफैक्चर करते हैं? Do herbivorous animals make their own cellulase? अक्षता, नो फॉर व्हाट? तो कौन बनाता है सेल्यूलेज? How does it come into the stomach or appendix of herbivorous animals? Bacteria. Very good. So इनके stomach या appendix में इस तरह का environment होता है that certain bacteria can survive, and these bacteria will produce cellulase, तब जाके वो cellulose को digest कर पाएंगे.
ओके, सो हम में भी अपेंडिक्स होता है, बट वो बहुत छोटा होता है, उतना छोटा है कि होता हो कि उसके अंदर का कैविटी या लूमेन इज सो स्मॉल कि उसमें फूड जा भी नहीं सकता है, सो इट इज यूजलेस. ओके, so we cannot digest plants, but our ancestors, that is monkeys, like human beings, हमारे जैसे monkeys को भी appendix छोटा था. आज भी आप monkeys देखोगे या monkeys के ancestors देखोगे या समझो उसके कुछ fossils मिल गए पहले के, तो पता चलेगा कि उनके intestine भी, अरे उनके appendix भी छोटे थे. That means maybe our ancestors were carnivorous, they did not eat much plants. Okay, however उसके बाद हमको पता चलता है that these ancestors, जो monkey like ancestors या फिर monkeys and many apes, जो हम जानते हैं आज, we can do the DNA analysis, और हमको पता है कि ये सब हमारे ancestors है. तो all these are vegetarian. Monkeys are vegetarian. You know, monkeys don't kill other animals and eat. Monkeys will eat fruits and berries from the trees. आप उसको नॉनवेज दोगे तो भी वो थू कर देगा, खाएगा नहीं. So our ancestors of monkeys were non-vegetarian, इसलिए शायद उनका अपेंडिक्स छोटा था. आज भी उनका अपेंडिक्स छोटा है, लेकिन वी नो दैट मंकीज आर मेनली वेजिटेरियन. इनफैक्ट ऑल दीज एनिमल्स, ये सब हमारे एंसेस्ट्रल कजिन्स हैं, इंक्लूडिंग द गोरिला, क्लोजली रिलेटेड टू अस, चिंपांजीज, ये सब हमारे एंसेस्टर्स या कजिन एंसेस्टर्स है, एंड ऑल ऑफ देम आर वेजिटेरियन. ऐसे कैसे हो गया? मतलब हमारे ओरिजिनल एंसेस्टर्स थे मैमल्स जो कार्निवोरस थे, फिर उसमें से इवॉल्व हुए मंकीज. तो मंकीज कैसे वेजिटेरियन बन गए और क्यों बन गए? व्हाई मंकीज बिकेम वेजिटेरियन? एनीबडी? हाउ कम मंकीज बिकेम वेजिटेरियन अगर उनके एंसेस्टर्स नॉन वेजिटेरियन थे तो? बोलो. हाउ कम monkeys are vegetarian? No idea. Okay, this was not by choice, not by evolution, but by, it was by compulsion. So इसमें you have to go back a little bit in history of evolution. Lack of meat. Okay, so कुछ छोटे छोटे mammals थे, जैसे हम ऊपर देख रहे हैं, ये जो हमारे ancestor बहुत छोटे थे, tarsiers, they are small mammals. ये originally they used to live on land, but they were small, so in competition उनको खाना नहीं मिल पाता था या खुद खाए जाते थे, so other bigger animals used to eat them up. When there was scarcity of food, अपने हिस्ट्री ऑफ अर्थ में अक्सर ड्राउट्स आए एंड अक्सर वॉल्केनोज हुए या अक्सर अर्थक्वेक्स हुए, सो वेरी बैड कैटास्ट्रोफ्स होते रहे थे इन द अर्ली पार्ट ऑफ आवर अर्थ्स लाइफ. ओके, तो जब कभी इस तरह का कोई कैटास्ट्रोफिक इवेंट होता था, तब व्हाट यूज्ड टू हैपन कि देयर विल बी एन आर्टिफिशियल टेम्पररी स्कैर्सिटी ऑफ फूड. तब जानवर एक दूसरे को खाने लगते थे, एंड नेचुरली जो छोटे होते थे, they will land up not having food, and all they have to do is keep running away from bigger animals to save themselves. तो अपने आप को बचाने के लिए इनमें से कुछ बाई चांस पेड़ों पे चढ़ गए, पेड़ों पे चढ़ गए. ओके, और पेड़ों पे चढ़ गए एक तरफ बिकॉज मजबूरी में, दे हैड नो चॉइस, अपने आप को बचाने के लिए देयर वाज नो अदर प्लेस एक्सेप्ट टू क्लाइंब ऑन ट्रीज. अब इनमें से कुछ में म्यूटेशंस भी हुए, किसी के टेल बने, किसी के हाथ पंजे बने हमारे जैसे, सो दे कुड होल्ड टू द ब्रांचेस वेरी वेल. ठीक है, सो सम बाई चांस गॉट म्यूटेशंस,
एक तो उनको ये नया घर मिला था पेड़ों पर, दे हैड नो अदर चॉइस, दे वर स्मॉल सो दे कुड हाइड इन द ट्रीज, बड़े एनिमल्स ऊपर चढ़ नहीं पाते थे, एंड फिर ऊपर रह के दे स्टार्टेड हैविंग एक्सेस टू फ्रूट्स एंड बेरीज। जब वो ऊपर गए तब उनको पता चला कि फ्रूट्स और बेरीज बहुत टेस्टी होते हैं, बिकॉज अब तक क्या होता था, दे यूज्ड टू लिव ऑन लैंड, सो लैंड पे क्या मिलेंगे, ओवर राइप या सड़े हुए फ्रूट्स ही मिलते थे जो ओवर राइप होने के बाद गिरते थे फॉर जर्मिनेशन। सो animals on the ground generally will not have access to fresh fruits, but when you go up on the trees you can pluck fresh semi ripe and raw fruits, and they are very very rich in nutrition. तो एक बार ऊपर चले गए और कुछ फीचर्स उनमें बने बंदरों जैसे, फिर उनको पता चला कि ये तो पेड़ों पर रहना ही ज्यादा अच्छा है, इट इज बेटर टू लिव ऑन ट्रीज, एंड it is better to get nutrition, and a lot of variety of fruits and vegetables can be available on the trees rather than going on back to the floor, ground पे जाने के बजाय. So इस तरह monkeys evolve हुए, and by compulsion उनको vegetarian बनना पड़ा. Now this happened for thousands of years. monkeys ने समझ लिया कि पेड़ों पे रहना अच्छा है, and because पेड़ों पे रहने लगे and they started getting access to a lot of varieties of vitamins and proteins जो अलग अलग पेड़ों में अलग अलग fruits में और vegetables में मिलते थे, so उसके वजह से उनका evolution फिर ज़्यादा होने लगा. So they had access to better foods, that is fruits, berries, leaves, etc. So they started evolving faster than the other animals. However, they were smart, so they did not go back on land. तो उनको कंपटीशन भी कम रहा और उनका पॉपुलेशन भी बढ़ते गया, और उनका इवोल्यूशन भी अच्छा हुआ, बिकॉज दे हैड एक्सेस टू बेटर फूड्स एंड प्रोटीन्स. At that time they have no choice, that's why they eat vegetable. If now they don't have the choice, they can eat non-veg. I will come to this question. उस वक्त they did not have access to food, तो वो जबरदस्ती वेजिटेरियन बने. अभी are they pure vegetarians or will they eat non-veg? I will come to that. Okay, but let me go to the evolution of this. So mainly because of fear वो ऊपर चले गए, लेकिन ऊपर जाने के बाद उनको एक नई दुनिया मिल गई और उसमें बहुत सारा अच्छा खाना मिला तो अच्छे अच्छे प्रोटीन्स और विटामिन मिले, जिससे उनका इवोल्यूशन और भी फास्ट हो गया, and they became smart and their brain started growing in size, mainly because they had access to lot of very good food. ये एक. दूसरा, पेड़ों पे रहने की वजह से उनका एक दिल से और दिमाग से फियर हट गया, बिकॉज अब उनको मारने वाला और खाने वाला कोई नहीं था. वंस दे आर ऑन द ट्रीज, देन दीज वाइल्ड एनिमल्स कैन नॉट ईट देम. और एक बार आपके दिमाग से डर चला जाता है, देन यू बिकम लाइक अ फ्री बर्ड. फिर आपका दिमाग पूरा काम करता है, बिकॉज एज लॉन्ग एज दे वर ऑन द ग्राउंड, दे वर कॉन्स्टेंटली लिविंग इन फियर. उनके लिए जीना मतलब सर्वाइव करना, बच के रहना, भागते रहना, दूसरों एनिमल्स के डर में रहना, यही होता था. बट नाउ दैट दे वर ऑन द ट्रीज, अब वो उनका माइंड फ्री हो गया, दे कुड थिंक अबाउट अदर थिंग्स. तो फिर पेड़ों पे खेलने लगे मतलब दे एक्चुअली स्टार्टेड एंजॉयिंग लाइफ विद ईच अदर, एंड while playing those fun games with each other, they started inventing so many ways to interact with each other socially. So the first really social animals जो एक दूसरे का फिक्र करने लगे, फैमिली में रहने लगे, ग्रुप में रहने लगे, दे वर द मंकीज. इसके पहले भी एनिमल्स झुंड में रहते थे, बट दे वुड नॉट टेक केयर ऑफ ईच अदर लाइक monkeys and primates would do. And once you have other animals who are taking care of you, मतलब आपके relatives है, आपके mother है, father जो आपकी care ले रहे, तो आप और secure हो जाते हो. And when you are secure, then your mind really works unlimited, बहुत काम करता है. So that was the next reason why again evolution of the mind of primates happened. ठीक है. Meanwhile पेड़ों पे रहने की वजह से और लटक कर उनका लोकोमोशन होता था बाय हैंगिंग विद द हैंड्स,
So gradually in evolution their arms became longer, and वो पैरों पे कम चलते थे तो उनके पैर छोटे हो गए थे. So their hands were bigger and their legs were smaller. Okay. One very important, they developed 5 free digits. पेड़ों की वजह से ग्रेजुअली उनको क्लॉज की जरूरत नहीं पड़ती थी, तो उनके फिंगर्स बन गए डिजिट्स, मतलब उनके क्लॉज बन गए फिंगर्स, उनके क्लॉज में के बदले नेल्स बन गए. बट सबसे इंपॉर्टेंट इवोल्यूशन जो हुआ, दैट वाज टू डेवलप अ फ्री. सॉरी, मैंने अपने आप को अनम्यूट नहीं किया था. माय मिस्टेक. Okay, just a minute. I'll get the file again. I'm getting back the file. 1 minute.
हाँ, so because of living on the trees and because of mutations, ये थंब इवॉल्व हो गया जो हमारे हाथ से अलग, हमारे पंजे से अलग हो सकता था. And because of that we developed what is called the pen grip or the pincer grasp. And because of this we could use our hands for very delicate and very complex functions. इसलिए बंदर पेड़ों की टहनी पे यानी ब्रांचेस पे पकड़ के लटकने लगे. They could easily use their hands for having locomotion on the trees. They could pluck trees. वो फ्रूट्स को छिल के अंदर की पल्प या अंदर के न्यूट्रिशन खा सकते थे. They could do so many things because of the hands. And because of hands, तो पहले because of getting berries उनका ब्रेन अच्छा डेवलप होने लगा. फिर because of the hand they could have access to so many important delicate functions जो और जानवर नहीं कर पाते थे. So the brain development, the hand, and then brain development के साथ they started learning to make words out of sounds. मतलब आवाज तो कर पाते थे. आवाज करना मतलब लैरिंग्स में से आवाज निकालना, दैट इज कॉल्ड वोकलाइजेशन. सो वोकलाइजेशन तो और एनिमल्स भी करते हैं, लेकिन अब उस आवाज को वर्ड्स में कन्वर्ट करना, सो दैट वाज फर्स्ट लर्न बाय आवर ह्यूमन एंसेस्टर्स. ओके, नॉट एट मंकीज आवर वर्ड्स बोल सकते हैं, लेकिन आगे जाके जो इवॉल्व हुए. ठीक है, नाउ दिस इज वन पार्ट, some of the reasons why monkeys evolved and why they became herbivorous. But what is very important is कि monkeys तो पेड़ पे चढ़ गए थे, लेकिन हम तो वापस पेड़ पे नहीं रहते, हम तो नीचे आ गए. So till now we know the reasons why. Probably one time in the history of the earth there were reasons why small animals went on the trees and gradually became monkeys. We also know they got access to good fruits, good nutrition, so maybe their brain evolved. We also explain कि maybe mutation से ये पंजा बहुत यूजफुल हो गया. अब ये सब इतना अच्छा अच्छा सब हो रहा था, तो फिर बंदर वापस जमीन पे क्यों आ गया? Why do we find man back on earth? अगर ऊपर इतने खुश थे, इतने होशियार हो रहे थे, इतने अच्छी सरवाइव कर रहे थे, तो फिर वो नीचे क्यों आ गए वापस? Okay, we know that monkeys live on earth, live on the trees, but they can come down. But उसके बाद आने वाले जो उसके डिसेंडेंट्स थे, जैसे चिंपांजीज थे, तो चिंपांजीज ज्यादा जमीन पे रहते. गोरिलास तो बिल्कुल जमीन पे रहते हैं. So these are our close ancestors. Monkeys are our distant ancestors. So why did they come back on land? Increase in population. पेड़ तो इतने सारे ना उस जमाने में, तो see man evolved around 2 million years back, man ancestors. तो उस टाइम तो पॉपुलेशन का कोई प्रॉब्लम नहीं था. अगर ज्यादा पॉपुलेशन तो फिर भी जमीन पे ही था. ओके, सो सी लेफ्ट साइड पे इज चिंपांजी. इफ यू रियलाइज चिंपांजी में टेल नहीं होता है. सो मंकीज हैव टेल्स, बट एप्स मतलब दोज मंकीज विच डू नॉट हैव टेल्स. टेल्स नहीं चाहिए उनको, क्योंकि टेल्स जो लटकने के लिए काम में आते हैं या बैलेंसिंग के काम आते हैं, वो उनके काम में नहीं आते, बिकॉज दे लिव मोर ऑन द फ्लोर, दे मोर लिव ऑन द ग्राउंड. ये हमारे ancestors, they are the connecting link between monkeys and man. This is called australopithecus. Then these are our ancestral man, बिल्कुल हमारे जो केव मैन हम बोलते थे. तो ये सब तो पेड़ पे नहीं रहते थे, तो नीचे क्यों आ गए? दे आर स्ट्रोंगर. नो, वो वेजिटेरियन तो हम कैसे नहीं? मैं ही वो पूछ रहा हूँ ना, तुम तो मुझे पूछ रहे हो, मैं तुमको पूछ रहा हूँ. monkeys were vegetarians and we are not pure carnivores, but we are omnivorous. We are smart. हम वेजिटेरियन भी खाते हैं, नॉन वेज भी खाते हैं. सो एक तो वो क्यों हुआ? बट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि इफ वी वर सो हैप्पी ऑन द ट्रीज, तो फिर हमारे एंसेस्टर्स नीचे क्यों आए? ऊपर ही पेड़ों में क्यों नहीं रहे? है ना? सो व्हाई डिड ह्यूमन बीइंग्स
why you find human beings on the ground, why we are not on the trees? क्योंकि हमारे कुछ ancestors पेड़ों को छोड़कर नीचे आ गए. So my question is, why did they come down again if we were though happy on the trees? They could cook food on the trees. लेकिन कुक क्यों करने की जरूरत है? अच्छा फ्रूट वेजिटेबल्स मिलता है, तो कुक करने की जरूरत क्या है? They become smarter to fight with wildlife. On one hand, yes, some of our ancestors started ये हाथ उनका पंजा डेवलप हो गया अच्छा, तो they could not make tools but they could throw things at other animals. But ये जो दिख रहा है ना, ये ऑस्ट्रेलोपिथेकस, ये भी 3.5-4 फुट का ही था. So monkeys were small and even our ancestors were very small. ये थोड़े दिखते बड़े, but actually they were around 4 feet only, which means they were small. तो फाइट करना आसान नहीं है with the wild animals. So that was not the reason. और अगर फाइट कर सकते तो क्या हुआ? That is not the reason for coming down. है ना? कोई अपना अच्छा घर छोड़ के झगड़ने के लिए, लड़ने के लिए नीचे नहीं उतरेगा एनिमल. There must be some more important fundamental reasons for coming down. Because वो बड़े हो गए. नहीं, ये बड़े नहीं हुए. ऊपर जब तक थे तब तक छोटे ही थे. इनफैक्ट नीचे आने के बाद बड़े हुए. ये जो मंकीज 2-2.5 फुट के होते हैं, चिंपांजीज अराउंड 3 फुट के होते हैं, और ये जो हमारा एंसेस्टर मैन है ऑस्ट्रेलोपिथेकस या होमो हैबिलिस, ये अराउंड 4 फीट के होते हैं. बट देयर साइज इंक्रीज्ड आफ्टर दे केम डाउन. ऊपर बड़े नहीं हुए, या बड़े हुए इसलिए नीचे आना पड़ा, ऐसा नहीं था. नीचे आने के बाद बड़े हुए. बट माय क्वेश्चन इज, बड़े क्यों हुए? आई मीन सॉरी, नीचे आए ही क्यों? व्हाट वाज रॉन्ग इन द ट्रीज? लैक ऑफ फ्रूट्स. व्हाई? पेड़ों में फ्रूट्स की कमी क्यों होने लगी? यू आर राइट. देयर वाज अ टाइम व्हेन, ये इफ यू नो, अफ्रीका वाज द आइडियल कॉन्टिनेंट फॉर एनिमल लाइफ. एंड उसमें बहुत सारे एनिमल्स थे ऑन लैंड and some animals were on trees, bird, monkeys and birds. Okay, and for a long time they kept on evolving. However, जो बंदर झाड़ों पे थे वो पेड़ों पे ही रह रहे थे, और जो नीचे थे वो नीचे ही रहते थे. But then there came a time जहां अफ्रीका में for around 100 to 120 years continuous droughts आया. There was no rain for a very long time, or there was very less rain. जब for many years together जब रेन कम होने लगा, तो फिर पत्ते झड़ने लगे, ट्रीज कम होने लगे, एंड ट्रीज के जगह पे ग्रासेस बढ़ने लगे. यू नो ग्रासेस, मोनोकोटिलेडन ग्रास, बड़े बड़े बाम्बूज एंड वो जो कम पानी पे जी सकते हैं. दे सर्वाइव इन लेस वाटर. दे आर कॉल्ड ग्रासेस. बाम्बूज आर ऑल्सो बिग ग्रासेस, but they don't give rise to fruits, and trees मरने लगे. So when trees started dying, fruits became less. Then monkeys were forced to come down. When they were forced to come down, again there was a problem that they had to fight with the other animals. But like somebody said, by this time छोटे तो थे वो, लेकिन smarter हो चुके थे. तो now they could use tools, they could stow thrones. वो टहनी या ब्रांचेस, लकड़ियां बना के उसको यूज कर सकते थे टू स्केयर अदर एनिमल्स. सो टू सम एक्सटेंट दे बिकेम better in their defenses. Then by chance one of our ancestors realized and understood के how to make tools. मतलब पत्थर को तोड़ के कैसे शार्प एज वाले चीजें बना सकते हैं, और वो शार्प एज की चीजों से दूसरे एनिमल्स पे हम वार कर सकते हैं, वो भी उनको समझा. Later on, further our ancestor, that is the next ancestor, the name is Homo erectus. एक मिनट, just 1 minute.
दिस इज होमो इरेक्टस। इसने ये भी देखा, बाई चांस उसने कभी फ्लेम्स देखे, मतलब जंगल में आग देखी, तब उसे पता चला कि ये आग से तो एनिमल्स उसमें तप जाते हैं और कुक हो जाते हैं, और कुक हो जाते हैं तो फिर खाना उसको आसान हो जाता है। नॉट ओनली दैट कि अगर फ्लेम लग गई तो फिर खाना बिगड़ता भी नहीं है, 2-4 दिन खा सकते हैं। So that also happened accidentally, but they were smart and they started mimicking nature. तो they tried to find out कि नेचर में आग कैसे लगती है, तो उन्होंने खुद आग बनाना सीखा। और जब से आग बनाना सीखा, when they started making flame, by the time they already knew how to make tools, वो शार्प स्टोन्स या लकड़ियां कैसे यूज करने का दूसरे एनिमल्स को मारने के लिए, वो तो सीख चुके थे। But finally, when they understood how to make fire, then they realized that cooking helps, and they started easily eating their prey. मतलब अब तक वो नीचे आ चुके थे, फ्रूट्स वेजिटेबल्स कम हो गए थे, सो दे वर फोर्स्ड टू ईट अदर एनिमल्स। तो जो वेजिटेरियन हो चुके थे बंदर, अब नीचे आके उनको मजबूरन नॉनवेज भी खाना पड़ा। और नॉनवेज खाना आसान नहीं था, बिकॉज उनके दांत नॉनवेज के लिए नहीं बने थे, उनके कैनाइंस तो गायब हो गए थे, बट उनके चबाने के दांत थे, बिकॉज फ्रूट्स और बेरीज को चबाना काफी पड़ता है। सो दे कुड च्यू बट दे कुड नॉट टेयर फ्लैश वेल। अब वो जो टेयरिंग ऑफ फ्लैश नहीं कर पाते थे, उसके जगह पे ये सीख गए कि फ्लैश को कुक किया जा सकता है एनिमल्स को, और वो फ्लैश को सॉफ्ट बनाया जा सकता है। नॉट ओनली दैट, वो 2-3 दिन तक खाया जा सकता है, मिल बांट के खाया जा सकता है। सो दे स्टार्टेड गेटिंग इजी एक्सेस टू फूड, वन बिकॉज ऑफ वेपन्स एंड सेकेंड बिकॉज ऑफ फायर। इसके बाद जब उनके लिए फायर की वजह से फूड का एक्सेस इजी हो गया, वेपन्स की वजह से एनिमल्स को, दूसरे एनिमल्स को मारना आसान हो गया, तब उनको अमाउंट ऑफ फूड जो मिलने लगा वो अच्छा क्वांटिटी में मिलने लगा। ठीक है, एंड दैट इज व्हेन देयर साइज स्टार्टेड इंक्रीजिंग। सो आफ्टर दिस, इसके बाद जो हमारे एंसेस्टर्स थे, इनके बाद वाले, वो साइज में बड़े थे। एंड दोज एंसेस्टर्स, एक मिनट, they are our most recent ancestors. Just a minute. So these are our most recent ancestors. They are called Neanderthals. ये आपको मिलेंगे इसके फॉसिल्स इन वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज। तो अफ्रीका में बहुत कंपटीशन था, उसमें से कुछ यूरोप की तरफ चल गए। बाय दैट टाइम दे हैड ऑलरेडी लर्नड हाउ टू यूज वेपन्स। देखो इसके हाथ में भी स्पीयर है, weapons and fire. So wherever they went, they could have access to food easily. By this time हमारा आइस एज आ गया था। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बाय दिस टाइम दिस मैन इवॉल्व, हमारे अर्थ पे आइस एज आ गया था। एंड आइस एज में मतलब एवरीवेयर देयर वाज स्नो। सो स्नो में अदर एनिमल्स डिड नॉट नो हाउ टू सर्वाइव, बट मैन न्यू हाउ टू सर्वाइव, बिकॉज अब तक उसको पता था केव्स में रहना, उसको ये भी पता था कि वो पहाड़ों को तोड़ के या पत्थरों को तोड़ के अपने रहने के लिए एक छोटी सी गुफा बना सकता है प्रोटेक्शन के लिए। बाय द टाइम दे ऑल्सो न्यू कि फायर कैन बी यूज्ड टू कुक, फायर कैन बी यूज्ड टू कीप योरसेल्फ वार्म। सो थ्रू द आइस एज ऑल अदर एनिमल्स डिक्रीज्ड, बट मैन स्टार्टेड डोमिनेटिंग। और उसके बाद वो आइस एज के बाद और उसकी वजह से दूसरे एनिमल्स कम हुए और मैन डोमिनेट करने लगा। Okay, so this was Neanderthal, one of our recent ancestors. और उसके बाद ये और एक more recent ancestor just before Homo sapiens sapiens was this man. It's called Homo sapien fossilis or Cro-Magnon man. So that is how evolution of man happened. ठीक है? So this is just about a little introduction to how we became smart, how we became non-vegetarian, why tools and fire allowed us to survive
in very hostile conditions, जब दूसरे animals हमारे अंडर रहने लगे, मतलब we could dominate over other animals because of weapons and fire. Okay, and today also we are able to dominate the world because we are smarter and we have a lot of technologies, not only weapons and fire, but so many other technologies which animals don't have. Okay, so that was just an idea about evolution of man. Okay, now from next week we are going to start our chapter proper, that is animal kingdom. लेकिन आज हमारे पास थोड़ा टाइम है, so I want to introduce you to one more chapter, very basic chapter, that is animal tissues. Okay, so animal tissues, but अभी 401 हो गया है. We'll take a break of 4 minutes. We will return at 405. तो 4 मिनट का ब्रेक, और ब्रेक के बाद मिलते हैं. ठीक है, so take a nice break, refresh. We'll meet at 405 with a new chapter.
गुड आफ्टरनून. यस, वंस अगेन गुड आफ्टरनून. कैन हियर मी नो? अभी मैं दूसरी फाइल खोल रहा हूँ. Okay, so that from next time we will start our syllabus proper. One, give me 1 minute. One second. Huh? Okay, can you see this file? ये फाइल देख सकते हो? Which file? New file और जूना file? Old. Okay, so I'm getting a new file now. 1 minute. Okay. So now this is that second chapter of our syllabus. तो उसके बारे में कुछ करते, basic introduction. Okay. Now structural organization in animals, that is animal tissues. Okay, we are organized by the formation of tissues. आप सबको पता है when cells come together they form tissues. When tissues come together they form organs. Many organs together form an organ system, and many organ systems will make the organism. Okay, so that is how our bodies are organized. We are primarily made up of cells. Cells will make tissues. Tissues will make organs, then organ systems, and then the whole organism. Okay, तो ये चैप्टर में हम क्या सीखने वाले हैं? We are going to learn about the basic tissues that you will find in animals, mainly in mammals and human beings. ठीक है? For that we have to know the various levels of organization that we have in the different organisms. Okay, अब यहाँ पे जो दिखाया है, this is a bacterium and right side पे it is a protist. ये right side पे कौन सा protist है? What is this organism? Paramecium. Wonderful. And left side पे जो है that is a bacterium. ये bacterium पे आप बाहर देख रहे हो बहुत सारे cilia है और ये एक flagellum है, flagella. ठीक है? Now what is the biggest difference between these two organisms? What is the most important difference between these two organisms? Cells? No. What is the most important difference between these two organisms? Between a bacterium and a paramecium. Paramecium means it nucleus. Okay. Add something more. Nucleus and what else? चलो बैक्टीरिया में न्यूक्लियस नहीं है,
पैरामीशियम में है। पैरामीशियम में और क्या है जो बैक्टीरिया में नहीं होता है? व्हाट एल्स? बोलो। अच्छा, बैक्टीरियम bacteria belong to a group of organisms which is different from the group of organisms of paramecium. ये दोनों अलग अलग ग्रुप्स में है. So what are the two major groups of all organisms? आप organisms को दो major groups में divide कर सकते हो. वो कौन से? Bad है ये you must know. ये 8th 9th 10th तीनों साल में आपको सिखाया है. What is the major difference, or which are the two big groups of organisms? एक ग्रुप में आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया आते हैं और बाकी सारे ऑर्गेनिजम्स. या तो बोलो जल्दी, इतना टाइम क्यों लगा रहे हो निखिल? सो यू हैव प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स. सो प्रोकैरियोट्स आर एनिमल्स विच आर यूनिसेल्युलर एंड उनके सारे फंक्शंस, उनके सारे मेटाबॉलिक फंक्शंस will happen in the cytoplasm. They do not have nucleus or organelles. Other organelles like mitochondria, endoplasmic reticulum, जो भी उनके या अंदर जो functions होते हैं वो सारे के सारे open cytoplasm में होते हैं. However, in more advanced animals, I mean organisms like eukaryotes, the cytoplasm is further divided into smaller structures called organelles, small organs or organelles. And अलग अलग organelles अलग अलग काम करते हैं. So there is division of functions and all functions do not happen in the cytoplasm, लेकिन कुछ complex या complicated functions will happen inside special organelles. इससे फायदा क्या होता है? At a time the organism can perform different functions. एक तरफ वो माइटोकॉन्ड्रिया में एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है तो दूसरी तरफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रोटीन्स बन रहा है. तीसरी तरफ न्यूक्लियस में सेल डिवीजन की तैयारी चल रही है. Which means at the same time the organism can perform different functions. And when you can do multiple functions, then you can do more things in life, you can achieve better things in life. लेकिन बैक्टीरिया में क्या है? एट अ टाइम एक ही चीज हो सकती है. जब वो सेल डिवीजन कर रहा है तो प्रोटीन नहीं बना सकता है, जब प्रोटीन बना रहा है तो सेल डिवीजन नहीं कर सकता है. So there was a serious limitation when all your functions happen in one compartment, that is your protoplasm. Okay, so bacteria or monera, they are evolved only to that level that everything happens in the protoplasm. So हम कहते हैं कि उनका level of organization is protoplasmic level of organization. जो भी कुछ काम करते हैं वो सब प्रोटोप्लाज्म में करते हैं. However, इनके बाद all eukaryotes, उसमें पहले आए यूनिसेल्युलर यूकैरियोट्स मतलब प्रोटिस्टा. So their level of organization is not only protoplasmic but to the next level, that is organellar level. So they perform their different functions in organelles. और उसके फायदे हमने बताए. Okay. Now these are porifera, sponges. Okay. Porifera were the first animals, right? But porifera are not considered true animals. Although they are first animals, but they are not considered true animals. Why? Anybody? Why porifera are not considered true animals? बोलो. पोरिफेरा देखो, एक तो एनिमल जैसे दिखते नहीं, कुछ अजीब ही दिखते हैं. That is okay, but still we call them animals on one hand. On the other hand, we say that they are not true animals.
दे आर सेडेंटरी। हम भी तो सेडेंटरी, मैं भी तो दिन भर बैठा रहता हूँ, तो मैं भी एनिमल नहीं हूँ क्या? देखो पेट बढ़ रहा है, सेडेंटरी। सो यू आर नॉट यूजिंग द राइट वर्ड। सेडेंटरी मतलब बैठा जीवन। So you are right, but you have not used the correct word, Kiran. There is another word which you have in mind. They do not have locomotion. उसके लिए word क्या है? It is not sedentary. It is sessile. They are stuck to the floor and they cannot move, attached to the surface. Very good. Okay. So they do not show locomotion. फिर भी हम उसको animals बोलते हैं. और animals बोलने के बाद हम बोलते हैं कि they are not true animals. Now that is because उनके bodies, their bodies are made up of cells, but they do not have tissues. So their cells are individual cells होते हैं और वो मिल बांट के काम करते हैं, but they do not form tissues and they do not have a nervous system. So because of these two reasons, porifera are considered to be not true animals. They do not have tissues and they do not have a nervous system. इसके बाद मतलब Coelenterata onwards, you will find that cells started aggregating to form tissues. Then Coelenterata and Ctenophora, they were still very primitive animals. लेकिन फिर Platyhelminthes के बाद we started getting tissues which are very similar to our modern tissues. मतलब हम जो mammals में और पाते tissues, वो सब tissues आपको animals में मिलने लगे. Okay, so when cells aggregate to form large group of cells which perform the same function, they contain the same type of cells and they come from the same origin. So they were same structure, same function, and they come from the same type of cells. जब ऐसे cells एक साथ में इकट्ठा होते, then that group of cells is called a tissue. Okay, and tissues are of 4 types. कौन से? First is epithelial tissue, connective tissue, muscle tissue, and nervous tissue. So हमारी पूरी body में जहां भी कुछ भी बना है, चाहे हमारा बाल हो, हमारा स्टमक हो, हमारी आंखें और whatever, all the different structures are made up of only these 4 tissues. ये 4 टिश्यू के अलावा हमारे बॉडी में और कुछ नहीं है. Okay, so we are going to study these main 4 tissues. Now ये 4 टिश्यूज है, कनेक्टिव टिश्यू, एपिथेलियम, नर्वस टिश्यू एंड ओके. नाउ जैसे एनिमल्स इवॉल्व होते गए, पहले पॉरीफेरा, प्रोटिस्टा में से पॉरीफेरा बना, पॉरीफेरा में से और भी एनिमल्स बने, जैसे सिलेंट्रेटा इवॉल्व होते गए. ठीक है, बट ये इवॉल्व होने की जरूरत क्यों पड़ी? पॉरीफेरा खुश था, आज भी है ना. टुडे ऑल्सो यू फाइंड स्पॉन्जेस, और 4 बिलियन ईयर्स पहले भी स्पॉन्जेस थे. तो उसको स्पॉन्जेस छोड़ के कुदरत ने या नेचर ने और एनिमल्स क्यों बनाए, अलग तरह के एनिमल्स क्यों बनाए? फिर सिलेंट्रेटा बना, फिर टीनोफोरा बना. नॉट ओनली दैट, आखिर में मंकी बना और इंसान भी बना. व्हाई वाज देयर अ नीड टू मेक डिफरेंट एनिमल्स? व्हाई नॉट जस्ट अलग अलग टाइप के स्पॉन्जेस बने और पूरी दुनिया में स्पॉन्जेस ही फैलते गए? ऐसा क्यों नहीं हुआ? व्हाई न्यू एंड न्यू एनिमल्स केप्ट ऑन फॉर्मिंग? बेसिकली व्हाई डू एनिमल्स इवॉल्व? क्या जरूरत है इवॉल्व होने की? अभी हम इंसान हैं, तो क्या इंसान छोड़ के हम एलियन बनने वाले हैं या इंसान ही रहेंगे? टेल मी दिस क्वेश्चन. हम इंसान हैं, हम इवॉल्व होते होते बैक्टीरिया में से प्रोटिस्टा बने, उसमें से फिर इनवर्टिब्रेट्स बने, फिर वर्टिब्रेट्स बने, फिर शायद रेप्टाइल्स बने, फिर मैमल्स बने, और मैमल्स में से बंदर बन के आखिर में हम इंसान बन गए. अब आगे क्या हम और इवॉल्व होने वाले? आर वी गोइंग टू बिकम स्टिल डिफरेंट? नहीं, बस हो गया. क्यों? क्या इंसान इतना इवॉल्व हो चुका है कि अब और कुछ करने की जरूरत नहीं है नेचर में? व्हाई नॉट, मे बी वी कैन बिकम सम एलियन.
पता चलेगा कि हम मार्स पे चले गए और मार्स जैसे इंसान बन गए, और वी मे गो टू अ completely different solar system and evolve into different creatures, some other beings, not human beings. हो सकता है ना, इवॉल्व होगा, है ना। अभी इतना कंपटीशन बढ़ रहा है, स्कैरसिटी ऑफ फूड, पानी कम हो रहा है, खाना मिल नहीं रहा है लोगों को, कोरोना आ रहा है। हो सकता है कोरोना हमारे सेल्स में चला जाए एंड 2-4 साल में पता चले कि हमारा डीएनए कोई चेंज कर दिया, तो इंसान के बजाय हमारा सर कोरोना जैसा हो जाए, टोटल विल बिकम कोरोना मैन, है ना। ऐसा भी हो सकता है ना, हु नोस। हाउ कैन यू बी श्योर कि वी विल नॉट evolve or change into some other creatures? There is no way to say. If you think that we don't need to evolve, that means हम अब ओवर कॉन्फिडेंट बन गए कि हमारे से बेहतर और कुछ नहीं है, बट दैट नेवर हैपन्स, है ना। बिकॉज इट इज नॉट ओनली बेटर, बट अ चेंज इज नेसेसरी। आज जो एनवायरनमेंट है एंड हमारी जो स्मार्टनेस है, जिसकी वजह से हमको अलग अलग टेक्नोलॉजीज मिली है, आज हम गर्मी में एयर कंडीशन यूज करते हैं, हम ठंड में हीटर यूज करते हैं, वी नो हाउ टू मेक वार्म क्लोथ्स, वी नो मेक हाउ टू मेक कूल क्लोथ्स, हम बिना कपड़े के भी जीना सीख गए। सो वी अडेप्ट, and because we are smart we adapt, and so we are surviving in the different conditions which are existing on earth. But who said कि इसी तरह की conditions और हजारों लाखों साल तक चलेंगे? No, the conditions may change, and in fact again we are expecting that there is going to be an ice age. On one hand हम लोग global warming की बात कर रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग में क्या हो रहा है, जो आइस लैंड है, मतलब एंटार्क्टिका और आर्कटिका पे ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे, वाटर लेवल्स ऊपर आ रहे, है ना। हमारे अर्थ का अराउंड 80% पॉपुलेशन इज ऑन द कोस्टल रीजन्स, एंड इट इज एक्सपेक्टेड कि अगर अर्थ का टेम्परेचर 5 डिग्री बढ़ा, 5 डिग्री एवरेज टेम्परेचर, डू यू ऑल नो व्हाट इज द एवरेज टेम्परेचर ऑफ द अर्थ? व्हाट इज द एवरेज टेम्परेचर ऑफ द अर्थ? जैसे पूना में, बारामती में समर में 40 तक जाता है, विंटर में 12-13 तक भी जाता है। एंटार्क्टिका में -50 डिग्रीज भी होता है, -50, एंड डेजर्ट्स में +50 भी होता है। बट in different parts of the world there are different temperatures. So what is the average overall temperature of the earth? Anybody knows? What is the average temperature of the whole earth का average निकाला तो? Anybody knows? (23.3). Wow, from where you got the figure? 23.3 कहाँ से मिला? Anyway, ये गलत है। इनफैक्ट अगर 23.3 हो गया तो हम और आप जिंदा ही नहीं होते, ये लेक्चर ही नहीं होता। The average temperature of the earth is around 15 degrees, and it is said कि अगर 3 डिग्री बढ़ा तो द वाटर लेवल, मतलब वो हमारे जो एंटार्क्टिक और आर्कटिक इतना मेल्ट हो जाएगा कि वाटर लेवल विल कम अप बाई अराउंड 300 फीट। मतलब हमारा बॉम्बे, कोस्टल सिटी सब डूब जाएंगे 300 फीट, है ना। पूरा पूना और बारामती वी आर एट अराउंड 1000 फीट, वी आर अबव सी लेवल, तो हम शायद बच जाएंगे। बट कोस्टल cities will all be lost. 3 डिग्री, एंड some scientists say कि 5 डिग्रीज बढ़ेगा तब इतना मेल्टिंग ऑफ आइस होगा, इट विल इंक्रीज बाय 300 डिग्रीज। अरे 300 फीट पानी ऊपर आ जाएगा। इमेजिन करो पूरा बॉम्बे अंडर वाटर, है ना। वो ताजमहल होटल है ना, उसके आप 10वें 15वें फ्लोर पे जाओगे तो आपको बोट में जाना पड़ेगा, बिकॉज नीचे तो पानी होगा। सो दैट होल वर्ल्ड विल बी ड्राउन्ड, एंड अराउंड 80% ऑफ पॉपुलेशन विल बी वाइप्ड आउट, सिर्फ 5 डिग्री बढ़ा दो, है ना। सो इफ दैट हैपन्स, फिर हमको हु नोज, हमको पानी में तैरने को सीखना पड़ेगा वापस, बिकॉज मोस्ट ऑफ द अर्थ विल बी कवर्ड बाय वाटर। सिर्फ माउंटेन पीक्स ही बचे होंगे, जो आज हम हिल स्टेशन बोलते हैं
वो हमारे मेन सिटीज बन जाएंगे, और जो हमारे मेन सिटीज है वो हमारे तालाब बन जाएंगे, तालाब नहीं दरिया ही बन जाएगा. सो द होल थिंग विल चेंज. व्हेन एवरीथिंग चेंजेस, तो फॉर सम टाइम, फॉर सम 50-100 years जब ये सब चेंज हो रहे होंगे, तब इतनी जंग होने वाली है, बिकॉज लैंड स्कैर्सिटी होगी, पानी धीरे धीरे ऊपर आ रहा है. सो पीपल आर गोइंग टू फाइट विथ ईच अदर, एंड हु नोज, 50 साल नहीं, मतलब ये तो 200-300 सालों के बाद होने वाला है. बट वेन एवर दैट हैपन्स, वी मे बी टोटली डिफरेंट ह्यूमन बींग्स. ओके, सो कमिंग बैक टू टिश्यूज. हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है, आखिर में चाहे वो प्रोटिस्टा हो या प्लेटीहेल्मिन्थेस हो या mammals and primates हो, from platyhelminthes onwards, all animals have mainly 4 tissues. That is muscles, nerves, epithelia and connective tissue. और यही 4 टिश्यूज का ऑर्गेनाइजेशन अलग अलग तरीके से हमारे ऑर्गन्स बनाता है और ऑर्गन टिश्यूज बनाता है. एंड इवोल्यूशन हैपन्स बिकॉज फॉर सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट. कंपटीशन में कुछ फिट होते, कुछ अनफिट होते, जो अनफिट मर जाते और फिट होते वो एडेप्ट होते. दैट इज व्हाट चेंजेस हैपन. ओके, सो अभी अपना लेक्चर खत्म हो जाएगा. थैंक यू फॉर कोऑपरेटिंग. सॉरी फॉर बीइंग लेट टुडे, बट रिमेंबर फ्रॉम नेक्स्ट टाइम हमारा एक्चुअल सिलेबस चालू हो जाएगा. यू आर गोइंग टू गेट सम न्यू फ्रेंड्स फ्रॉम संडे. और अभी तक आप लोगों ने भेजा नहीं है, 3 ही स्टूडेंट्स ने अपना बायोडेटा भेजा है. आई वॉन्ट टू नो एवरीबडी स्टूडेंट इन एंड आउट, नहीं तो फिर सबके सामने क्लास में ही पूछना पड़ेगा. उसके अच्छा भेज दो अपना डेटा. ओके, सो वी मस्ट नो ईच अदर. सो सी यू, बाय बाय, नेक्स्ट वीक मिलते हैं.